بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے آرمی چیف کا دورہ برطانیہ، شرپسند عناصر کا بیانیہ زمین بوس، وزیر اعظم کا اڑان پاکستان ویژن، ایکسپورٹ اب جائے گی $60 ارب تک، کے پی میں معیشت تباہ، وزراء غیر سنجیدہ، پنجاب ہوگا اب عالمی سیاحت کا مرکز، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آج شلوار قمیض دیکھیں جی، اس کے اوپر کھلتے رنگ، گریسفل کوٹ، رضی دادا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور ہماری شمائلہ تو ویسی بڑی خوبصورت ہے۔ تھینک یو، ترقی کریے رضی دادا بھی، جمعہ مبارک آپ دونوں کو جی۔ بہت شکریہ، آپ کے ساتھ رہنے کا کچھ اثر تو ہونا تھا۔ پرسنالٹی تو ہے امین حفیظ، دیکھیں پرسنالٹی آپ کی کو تو دنیا کاپی کرتی ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کیا آپ نے کمبینیشن کرنا ہے، پھر میں بھی سوچتی ہوں ٹف کمپٹیشن ہے آپ ہمارے لیے۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ آج کے موضوعات بہت احترام ادب کے ساتھ ہمارے آرمی چیف کا دورہ برطانیہ، اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ وہ اوورآل کیسا تھا۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی آرمی چیف وہ وہاں کی فوج کے مہمان تھے، پیشہ ورانہ دورہ تھا ان کا، انہوں نے آنر بھی دیا، گارڈ آف آنر بھی دیا، آنر اور گارڈ آف آنر دونوں انہوں نے دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مطلب ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ہمارے جو سیکرٹری دفاع کے ہم منصب ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو بڑا بھرپور دورہ تھا۔ اچھا، وہاں پہ جو مقامی طور پہ ایک جو ہے وہ فتنہ پارٹی کے کارکنان تھے، انہوں نے بھی، اور پوری دنیا بھر سے بھی ہلاشیری دی گئی، حتیٰ کہ وہ پراپرٹی ٹائکون سے نوٹوں بھرا بریف کیس وصول کرنے والے صاحب بھی جو تھے وہ بھی پہنچے بذات خود، اور وہاں تھے وہ پہنچے۔ باقی سارے گلے تتر اور یہ گینڈے شینڈے وہ وہیں پہ مقیم ہیں، لیکن وہ نہیں پہنچے، وہ صاحب پہنچے، اور وہاں پہ ان کے آنے سے پہلے تک اور ان کے آنے کے بعد جو تھا، ان کے آنے سے پہلے تک مبلغ کوئی 13+3 بچے 16 لوگ تھے مظاہرہ کرنے کے لیے، اور ان کے آنے کے بعد وہ کوئی 35-36 ہو گئے، 50 ہو گئے ہوں گے، حد اس سے زیادہ نہیں تھے۔ تو وہ جو درمیان آپ کہیں گے کہ ایک دم تعداد بڑھی کیوں، وہ ایک افغانستان کا ہے، کوئی جعلی آئی ڈی چلاتا ہے جنرل مبین کی، وہ اپنے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف آف افغانستان لکھتا ہے، وہ پچھلے دنوں فرار ہو گیا افغانستان سے۔ تو افغانستان والے اس کو چیک نہیں کرتے؟ افغانستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہاتا تھا، وہ پاکستان کے اوپر تبرہ کرتا تھا، لیکن وہ دودھ اور شہد کی نہریں چھوڑ کر فرار ہوا ہے۔ پہلے وہ بھارت گیا ہے، بھارت کے بعد وہ انگلینڈ پہنچا ہے، اور وہاں پہ اس نے سیاسی پناہ کی درخواست دے دی ہے۔ وہ افغانی مظاہرین لے کے آیا تھا۔ اچھا، پاکستان ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ تھا، تو یہاں پہ تو کہتے ہیں نا جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کرنا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو وہاں پہ بھی کرتے ہیں نا جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ، کیا خیال ہے؟ نہیں، لیکن بات تو سن لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تو ہو گیا، میرا مطلب ہے کہ پوری دنیا سے انہوں نے ہلاشیری دی، کوئی نہیں آیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہے اس طرح کہ اس وقت ایک واحد جرنیل جس کے اوپر حافظ صاحب کے علاوہ جو ہے اٹیک ہو رہے ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کا اٹیک آ رہا ہے، فل تھروٹل، میں توجہ چاہ رہا ہوں امین بھائی، فل تھروٹل اٹیک آ رہا ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب۔ اچھا، اب سوچنے کی بات ہے کہ ان پہ اٹیک کیوں آ رہا ہے؟ وہ تو بڑے ڈیسنٹ سے آدمی ہیں۔ ہاں، آپ ان کے ایک دفعہ سامنے بیٹھ جائیں کسی بھی موضوع کے اوپر، وہ آپ کو قائل کر کے اٹھائیں گے، میری ہوئی ہے ملاقات، اور بڑی سالڈ آرگومنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اب جا رہے ہیں مختلف تعلیمی اداروں کے اندر، اور وہاں پہ وہ بچوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور وہ سخت سے سخت سوال لیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور اس وقت تک وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو سلسلہ کلام ختم نہیں کرتے جبکہ اگلا فریق جو ہے اس کو پورا جواب نہ مل جائے، یا اس کا پورا دلیل
کا काउंटर दलील ना हो। ऐसे ही जैसे पिछले दिनों DGISPR लाहौर तशरीफ लाए हुए थे, मीडिया से इंटरेक्शन थी, तो लोग सवाल जवाब करने में जरा जल्दबाजी कर रहे थे कि हम पहले सवाल कर रहे हैं, वो जर्नलिस्ट चाह रहे थे वो पहला सवाल कर लें या इस तरह। उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की। DGISPR कहते हैं कि देखें आप तहम्मुल करें, मैं मौजूद हूँ, स्टेज पे मौजूद हूँ, और मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक हाजरीन में से कोई शख्स ये कहे कि बस जी मेरा ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल भी मैं सुनूंगा और उसका पूरा तफसील से जवाब दूंगा। मतलब उनकी ये आदत है माशाल्लाह, अपने सब्जेक्ट पे, मौजूआत पे, बर्निंग इश्यूज होते हैं उन पे पूरी ग्रिप होती है। और वो ये नहीं कि मखसूस लोग बुलाए, खास किस्म के लोगों को सामने बिठाया, ओपन होता, मतलब वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ओपन टू डोर अच्छा, एवरीवन। कुछ लोगों का ख्याल है कि बानी की चीखों में जो इजाफा हुआ है वो दो वजूहात की बुनियाद पे हुआ है। एक तो ये हर तालीमी इदारे में जा रहे थे, पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बच्चों और बच्चियों को बुला के तो उनसे बात की, इंटरेक्ट किया, उनके सवालों के जवाब दिए, तो उनकी तो सारी प्लानिंग पे पानी फिर गया। बानी का ख्याल है कि जैसे वो जहेज में लेके आए हुए थे, कि मेरा मतलब है कि उनका ख्याल है कि यूथ से तो सिर्फ वही मुखातब हो सकते हैं, नहीं पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो पंजाब यूनिवर्सिटी की यूथ ने बानी के साथ किया था, वो तस्वीरें भी, वीडियो भी बनी हुई हैं कि गिरेबान पकड़ा गया, बहुत कुछ और भी। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि बानी साहब जो हैं वो समझते हैं कि ये तो मेरा एक्सक्लूसिव डोमेन है, इनसे तो मेरे अलावा कोई कलाम ही नहीं कर सकता। मैंने बच्चों के ज़हन खराब किए हुए हैं, ये क्या ठीक करने पे चल पड़े। उनके उस गलाजत को धोने की कोशिश करता है तो उनकी बहुत चीखें निकलती हैं, और उन चीखों का मजर जो है वो हमें मुख्तलिफ जगहों पे सोशल मीडिया के ऊपर नजर भी आता है। बहुत प्रोपेगेंडा हुआ है अभी। लाहौर हो या लंदन हो, लाहौर से लंदन मुजाहिरीन की तादाद अब 3 दर्जन ही रह गई जी, लाहौर से लंदन। शुमाइला, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, हाँ, अभी जो दौरा बरतानिया में सोशल मीडिया पे रॉयल मिलिट्री एकेडमी और फिर 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वो लंदन में हैं। तो उनका देखें जो एक प्रोफेशनल, ट्रूली प्रोफेशनल ये दौरा है, और जितनी इज्जत एहतराम आर्मी चीफ को मिला है, ये आर्मी चीफ के साथ साथ ये पाकिस्तान की अफवाज पर पूरी दुनिया का एतमाद है, और ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इससे इजाफा हुआ है। अब वो पार्टी और वो लोग जिन्होंने तो मुखालफत के नारेबाजी में और इश्तेहार लगाना और फिर एम्बेसी के बाहर ऐसी गाड़ी और डिजिटल खड़ी कर देनी जिसके ऊपर पाक फौज के मुतालिक हुक्मरान जमात के खिलाफ ये सब कुछ करते थे। मतलब वो पार्टी जिसने, मतलब मैं क्या कहूँ, सऊदी अरब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर भी हमारी सीनियर वजीर पंजाब की, मतलब मैं तो हुक्म कहूंगा कि मरियम औरंगजेब पर जिस तरह अल्फाज कसे गए, जिस तरह उनको गाली गलोच उनकी इस्तेमाल की गई रोजा रसूल पर, अब जो पार्टी इस लेवल पे जाती है उसके लिए मतलब है कि बरतानिया में भी, लेकिन और बातें करते हैं एहतराम की, नंगे पाँव की, पता नहीं क्या क्या। नहीं, मैं तो देखें जी, मैं तो ये बात करता हूँ कि मेरी अगर रजी से झगड़ा हो जाए या आपके साथ भी हो सकता है ना, हम इंसान हैं, इख्तिलाफ हो सकते हैं, तो और अगर मैं आपके साथ चाहूँ, रजी दादा के साथ भी मैं चाहूँ कि मैं दोस्ती मेरी बहाल हो जाए, तो मेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं रजी दादा की जो पॉजिटिव बातें हैं वो करूं, रजी दादा से मैं ऐसी बातें अपने मुंह से निकालूं जो रजी दादा तक जाएं, तो रजी दादा खुश हो गए, मीन हफीज मेरे बारे में ये अच्छी बातें कर रहा है। अब एक तरफ आप खत लिख रहे हैं, एक तरफ आप मुलाकात चाहते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि मुझे रिलीफ भी एस्टेब्लिशमेंट से मिलेगा, वो खुद और दूसरी तरफ आप उनसे मोहब्बत भरे अंदाज, अल्फाज, एटीट्यूड, लबो लहजा उनके बारे में सोशल मीडिया पर भी जो कुछ कह रहे हैं, क्या ये मिलने की टेबल पर बैठने का खुला तेजाब नहीं है?
अच्छा नहीं, वो खात खुद नहीं लिखते, लिख ही नहीं सकते ना technically। प्रोपेगेंडा ही है ना, ये नहीं, भी सुन तो सोशल लेना, मीडिया पर सुन तो प्रोपेगेंडा लेना। है। वो एक हमारी अदाकारा थी, हयात है, अल्लाह ताला उनको और सेहत दे, शबनम। हाँ, उन्होंने एक गाना गाया था हाय, हाय, अपने हाय। अनफवान शवाब में, अच्छा, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरा, हाय हाय हाय, हाल मेरे दिल का तमाम तमाम लिख लिख दे। वो किसी को कहते हैं कि ये नोट्स जो हैं, इस पे आर्टिफिशियल अब उस इंटेलिजेंस सैया से के बारे में ये लेटर इतना लिखवा negative के, क्यों है? तो मेरे नाम पे Superintendent- पोस्ट कार्ड। अपना मैं आपको बताऊं, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बारहा ये बात ऑन कही। रिकॉर्ड पर बात की है कि कोई लीगल फ्रेमवर्क, कायदे जेल कानून के तहत हाथ यहां से नहीं गया। सही। अब उन्होंने भी शबनम की तरह किसी को कहा होगा, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, अच्छा हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। अच्छा, ये उन्होंने किसी से लिखवाया होगा, लिखवाया। फिर उसको कहा होगा लिखवाते हैं। इसको डाहाने में भी डाला हो। अच्छा, वो डाहाने में भी डाला होगा, लेकिन देखिए डाक आज भी, महकमा डाक की क्या कारकर्दगी है। बड़े थोड़े पैसे प्राइवेट सेक्टर के जो पोस्टल कंपनीज हैं, उनके तो रेट बहुत ज्यादा हो गए ना। विद इन कंट्री भी अगर आप कोई चीज मिनिमम वेट की भेजें बिल्कुल। तो वो 300 से 400 500 रुपया लेते हैं। हमारा महकमा डाक हाय 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 आज भी पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज, जहां आप समझे सड़क भी नहीं है प्रॉपर, महकमा डाक उन्हीं चंद सिक्कों के बदले में सही कह रहे। आपका मैसेज, आपकी डाक वहां पहुंचाता है। तो बानी का भी खत किसी शरीफ आदमी ने पहुंचा दिया होगा, लेकिन जवाब तो मिल गया ना। हाँ, जवाब कि उन्होंने हमने क्या- ना पढ़ा जवाब ही है, है, जवाब ही है। मिलेगा भी तो हमने पढ़ना नहीं है, हमने प्राइम मिनिस्टर को भेज मैंने दिया। कहा पहले ही साढ़े जवाब। वाला जवाब। आहो, ना ही समझो। साढ़े वालों तलाक है, तलाक है, तलाक है। देखिए, बिल्कुल। मतलब बानिया लेकिन- फिर ये कहते हैं, लेकिन बानी आप- को आज फिर कहते हैं कि वो थोड़ा सा अगर अपना लबो लहजा, अपना अंदाज पॉजिटिव रखें, जमहूरी अंदाज अपना लें, टेबल पर बैठ जाएं और देखें, जमहूरियत में ना कोई पक्का दोस्त होता है, ना कोई पक्का दुश्मन होता है। लेकिन मैं आज आपको- की दोस्तियां कल में दुश्मन में बदल दुश्मनियां हो सकती सकती हैं, हैं, alliance में बैठना दुश्मनियां पड़ सकता है। दोस्ती में भी बदलती बिल्कुल हैं। ठीक है। तो बानी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और जमहूरियत का फलना फूलना ये खूबसूरत कामयाब हर मुज़ाकरात प्रोग्राम में में है। अमीन साहब समझाते रहते हैं, लेकिन मजाल है उनके कान में जूं भी रेंगती हो। एक सुन बात- ले, समझ ले, समझदार आदमी है। एक और बात देखिए, अहमद शरीफ साहब की ना दो मसले हैं मेरे ख्याल में, बानी की नजर में दो मसले हैं। एक तो ये कि वो यूथ के साथ मुखातब होते हैं, जी, दूसरा जो ये पहले कि- कभी नहीं होते। जो अभी तक नहीं हुए। मतलब पॉलिटिकल साइड पे मरियम बीबी ने ये काम शुरू किया है, हाँ, लेकिन और दूसरी- काफी पजीराई मिल रही है और उनको तलीमी इदारों उनको भी में। पजीराई मिली है। दूसरा ये है कि अहमद उनके तो फिर दो ही दुश्मन है इस वक्त। नहीं नहीं, एक ही है। दूसरा ये कि अहमद शरीफ साहब के नाम के अंदर शरीफ भी आता है। तो इसलिए वो ज्यादा दुखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले। देखिए जी, मैं अपने हमारे आर्मी शरीफ चीफ का राजा, मजमूई तौर पे आप भी शरीफ हो जाए। बरतानिया का दौरा बड़ा कामयाब रहा है और बहुत पॉजिटिव वहां उनको रिस्पांस मिला है। और हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब ने ये कहा है कि जो कोई लोग भी, पार्टी तो सबको पता है कौन है, कौन कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने ये क्लियर कैटेगोरिकली कहा है कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी दौरे के दौरान मिस प्रोपेगेंडा, यानी कि जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा झूठा किया, दारों के खिलाफ, प्रोपेगेंडा, वतन के फेक खिलाफ, प्रोपेगेंडा। उनके खिलाफ जरूर कानून एक्शन कार्रवाई होगी और कानून हरकत में आएगा और जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। अच्छा, आपके घर में कोई पुराना जूता पड़ा हुआ है? मेरे घर में बहुत है। हैं? मैं आपको अर्ज करूं, जब भी पाकिस्तान को दुनिया के किसी फोरम पे इज्जत मिलने लगती है ना, एक ही पार्टी है जिन्हें पूरी दुनिया ने मिर्गी पे आ जाती। तो मैंने कहा पहले वो पुराना जूता रखें, सुंघाया जाए उनको जी, पुराना इज्तिमाई जूता। तौर पे, ठीक है। इज्तिमाई दौर पे हम पुराना जूता तो सुंघाए, हमारी तो बारी नहीं आनी। लेकिन वो कहते हैं ना टक्कर के बंदे, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है ना, इनको बड़े टक्कर के बंदे मिले हुए। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और रजी दादा, हमें ये बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो विजन है उड़ान पाकिस्तान, उससे मुल्क की मईशत किस हद तक बेहतर होगी? देखिए, उसके अंदर जो दीगर बातों के अलावा एक्सपोर्ट्स को 60 अरब डॉलर तक ले जाने की बात है। हाँ, ये 60 तकरीबन अरब डॉलर अगले तक। 3 सालों में। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे लोग तंजिया अंदाज में कहेंगे, ले हमारे पास है ही गया जो एक्सपोर्ट करेंगे। मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान के अगर हम सिर्फ वाकई कुछ नहीं, पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को अगर देखें तो वो अपनी 45 कैपेसिटी पे चल रहा है, राइट। फीसद कैपेसिटी पे, ठीक है। यानी वो समझे अपनी कैपेसिटी से तकरीबन आधे पे चल रहा है, आधे से भी कम पे चल रहा है, ठीक है, ठीक है ना। और वजह उसकी टेक्निकल इश्यूज हैं। मसलन देखिए ना, जिनिंग के अंदर हमारा अभी तक साजन चल रहा है। दुनिया को वो टेक्नोलॉजी अबेंडन किए हुए दुनिया को वो टेक्नोलॉजी अबेंडन किए हुए कई दिहाइयां गुजर गई, वो हमारा बंदा अभी तक वही चलाई जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुल्तान में बनता ही वही है। सही। और अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, और महंगा पड़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और एफिशिएंसी हमने लानी कोई नहीं है, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो फिर सब्सिडी की जरूरत होगी। मतलब अगर सरकार उसमें हाथ बटा दे कि वो उन्हें कहे कि भाई आप इंटरेस्ट फ्री कर्जे, हाँ ठीक है ना, उस पे उठा लो, उस पे ले लो, या हम आपको सब्सिडाइज कर देते हैं, ये भी तो सब्सिडी होती है। इसी तरह जो हमारा स्पिनिंग सेक्टर, अब स्पिनिंग सेक्टर में हमने सारी रशियन एज का जो रिंग लगे हुए हैं, हमारे जो तकले लगे हुए हैं, वो पुराने दौर के हैं। यानी 90 की दहाई के अंदर हम बाहर से कहीं से इस्तेमाल शुदा उठा के लाए थे, वो कुछ 60 साल पुराने हैं। उनके साथ जो मोटरें लगी हुई हैं वो 10-10 गुना एनर्जी खाती हैं। अब जमाना बदल गया है। मेरा मतलब है अब तो स्पिनिंग की टेक्नोलॉजी ही बदल गई है। और ये टेक्नोलॉजी, आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमारे एक लाहौर के रहने वाले डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब जो हैं, उनकी रिसर्च के नतीजे में बदली है। अब ये जो आपके कपड़े के ऊपर बुर आता है ना, जो नई स्पिनिंग टेक्नोलॉजी के तहत वो बुर नहीं आएगा, वो उस बुर को भी लपेट के धागे का हिस्सा बना देती है टेक्नोलॉजी। हाय क्या बात है। डॉक्टर साहब का पीएचडी थीसिस और था। जो बंदे में भी जो झुर्रियां आ जाती हैं, बुरा आ जाती है, टाइम तो के साथ टाइम के साथ आ जाते हैं कुछ आ जाती है। कुछ एरिया जो है वो वीरान हो जाते हैं। वो कोई ऐसी मशीन भी होनी चाहिए ना कि बंदा मुंह यूं डाले तो इंज निकले, तो क्या चेहरा हो जाए 18-20 साल वाला है। बस आप इस बात पे गौर करते रहिए। लेकिन मैं, डॉक्टर साहब का पीएचडी का थीसिस था, और आप अंदाजा फरमाइए कि डॉक्टर साहब ने 57 साल है ना, याद आया मुझे, कुछ लोग लगवाते भी हैं। डॉक्टर साहब ने स्किन, अब तो इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। 2 years तक लोग लगवाते हैं। नहीं, टीके जो लगाने वाला डॉक्टर होता है उसको सेनेटर बना देते हैं यार। ओ बिल्कुल, नवाजते हैं उनको। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था डॉक्टर मुश्ताक, रजी दादा बहुत शैतान आदमी डॉक्टर है। मुश्ताक मांगट साहब, यार किसी चंगे बंदे का जिक्र कर ले। डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब, उन्होंने मतलब के 50s में जाके पीएचडी की, कि सिर्फ मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पीएचडी करे, और उनके वालिद साहब किसान थे और पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने जनाब नई टेक्नोलॉजी दिया। इससे रंग की बचत होगी, क्योंकि वो बुर जो होगी वो जब आएगी नहीं तो वो बुर जो रंग खा जाती थी वो डाइज की बचत होगी, ठीक है। उस बुर को दूर करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो मेरा मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई है धागे के अंदर, बुनाई के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ 50% कैपेसिटी से ज्यादा आइडल पड़ा हुआ है। अगर हम इस 50% कैपेसिटी को सही यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स खामखा, मेरा मतलब है 28 से 30 अरब डॉलर चली जाएंगी। 18 तो इस साल भी जा रही है ना, ठीक है। तो मैं 30 अरब डॉलर तक तो सिर्फ हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जाती है, फायदा हो रहा है, विद इन नो टाइम जाती है। अगर हम सिर्फ उसको, देखिए जी, बात यह है कि अगर हम अपने सर्विसेज सेक्टर में, आईटी में, एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल में, जिनमें मतलब है कि हमारा नाम है, आप अगर अपने मखसूस जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जाके देखें, बात इतनी है कि जैसा प्राइम मिनिस्टर ने अभी अपनी मुआशी टीम के साथ मीटिंग की है और ये बताया है कि हम जो हमारा टारगेट है, हम अपने इस दौरे इक़्तिदार के दौरान
60 अरब डॉलर तक बरामदात के लेकर जाएंगे। उन्होंने अपनी मुआशी टीम को टारगेट बड़ा क्लियर शुमाइला दे दिया है कि आप इसकी जो बिजनेसमैन है इनके साथ 1-to-1 वो आप मीटिंग्स करते रहें, जो प्रैक्टिस जिसको कहते हैं ना कि एजुकेशन, तालीमी इदारे और इंडस्ट्री का मिलाप हो जाए तो आपके तालिब इल्मों का और इंडस्ट्री का बहुत फायदा होता है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप उनके साथ गुफ्तगू करें, ऐसी इस्लाहात लेकर आएं, टैरिफ कम से कम करें और बिजनेसमैन के साथ मिलके जो भी वो आसानियां चाहते हैं कि जिस तरह जो बरामदात करने वाली हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको ज्यादा से ज्यादा मराद दें कि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें और बरामदात में इजाफा होना, रजी दादा बता रहे हैं कि मुश्किल बात नहीं है। अब देखिए ना, टैलेंट की कमी नहीं है। चावल की बरामदात को अगर हम देख लें सही, तो अभी हमने केस जीता है बासमती का ना, बासमती का जो राइट है कि कौन बासमती उगा सकता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर उनकी अदालतों ने ये तस्लीम किया कि बासमती सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेरे इंतजाम जो इलाका है वो उगा सकता है। अच्छा। और अब अंदाजा कीजिए, हमें इंटरनेशनल, अभी ये केस हमारा अमेरिका और बरतानिया यूरोपियन यूनियन के हवाले से पेंडिंग है वहां के अंदर, लेकिन एक जगह से हम जीत गए हैं। सच क्यों ना जीते? इसका फायदा तो ये ये है, आज भी हमारा, हालांकि बहुत सारा चावल एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन जो हम तक पहुंचता है, शुमाइला आय हाय आप तो लड़की हो, जब हमारा लोकल चावल पकता है और वो फूलता है और खुशबू उसकी फैलती है, आय हाय 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 हाय, मैं कहता हूं कि दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की सरसब्ज़ो शदाब जो हमारी मिट्टी, जो जिसमें वो क्या कहते हैं कि हमारी मिट्टी जो सोना उगलती मिट्टी जो है, इसकी जो पैदावार है, हमारी जो चावल की पैदावार है, हमारी दीगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं, थोड़ी सी शाबाश और इनको हल्का सा टैरिफ में रिलीफ और तरीक़ेकार जरा आसान हो जाए। जैसे शुमाइला बात करते हैं कि उड़ान पाकिस्तान, इसमें आप देखें कि पाकिस्तान में कई मौके आए जब हमने उड़ान भरनी शुरू की, तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम का दौर आया और हम आगे बढ़ते गए। ये 1960 की बात है, फिर 1990 की बातें हैं, फिर 2013-18 तक का जिस तरह पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की सरबराही में ऊपर उड़ा, लेकिन फिर क्या होता था, जैसे ही पाकिस्तान वो तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, कोई ना कोई आके टांग खींच देता था। और फिर उसके बाद आज शहबाज शरीफ वजीर आजम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी वो 3 उड़ान जिसमें हमारी टांगें खींच ली गई थी, अब कोई हमारी टांग ना खींचे और हमारी गुड्डी जो है तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम की, वो हम सबसे पहले अपनी बरामदात को बढ़ाकर और 60 अरब डॉलर तक टारगेट को अचीव करें। और इंशाअल्लाह ताला अगर कोई मुंतहिब हुकूमत की टांग ना खींचे तो मैं समझता हूँ, और वो जैसे होते हैं ना कि जो वैसे ही नजर पट्टू होते हैं वो भी ना हो, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और उसका इस्तेहकाम कोई नहीं। 60 अरब डॉलर कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी नहीं अगर, है। अगर सिर्फ मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई नई इंस्टॉलेशन भी ना हो आपकी इंडस्ट्री की, अगर सिर्फ एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री इंस्टॉल हो चुकी है, सही, उसको भी आप तकरीबन इस वक्त वो अगर 40% पे चल रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा उसे 80%, 90%, 100% पे कर ले, उसको भी अगर आप 40 से उठा के 60-65 पे ले जाएंगे तो ये 60 अरब डॉलर का हमारा टारगेट जो है वैसे प्राइम मिनिस्टर का जो अभी ज्यादा फोकस है, जिनको उन्होंने टारगेट किया वो आईटी और नौजवान है हमारे। लेकिन एक और भी टारगेट है उनका, आईएमएफ ने भी उसकी निशानदेही की है, और वो टैक्स कलेक्शन भी है। बिल्कुल ठीक है, और पहले बिल्कुल ही नहीं दे रहे थे। हाँ, और मेरा मतलब है कि अगरचे टारगेट इस दफा अचीव हो जाएगा, ज्यादा इम्कान है अचीव हो जाएगा, लेकिन उसी तबके को हम निचोड़ी जा रहे हैं जो तबका पहले टैक्स दे रहा है, और नए जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी रेशो आने की बहुत कम है, जितनी हो सकती है उससे बहुत कम है, नंबर 1। और नंबर 2, जिस रेशो से चेक ज़ाहिर है जब कम लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा तो टैक्स की रेशो ज्यादा होगी।
ऐसा ही है। दुनिया के अंदर सेल टैक्स बाज ममालिक में 10% है, बाद में 5% है। क्यों है? क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग टैक्स देने वाले हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ज्यादा लोग टैक्स देने वाले नहीं है, तो इसलिए जिन पे लगता है उन पे फिर 18%। हमारे यहाँ जो इतनी टैक्स अच्छी देने बातें वाले कह हैं रहे हैं उनमें भी आप दोनों। अक्सरियत तनख्वाहदार लोग हैं ना, हाँ, उनमें हम भी तो देते अक्सरियत जो है वो तनख्वाहदार लोग हैं। अरब अरब रुपए की सेल जैसे है मीन रोजाना फीस की। को तनख्वाह बाद में मिलती है, टैक्स पहले कट जाता है। मेरा भी। हम तो टैक्स पूरा देते हैं इसको ना। इसको छोड़े, देखिए अरब अरब रुपए की सेल है डिपार्टमेंटल स्टोर की, हाँ। और टैक्स साल का 20,000 रुपए है। ऐसे ही ज्यादती है। ठीक है ना? अच्छा, वो एक और चालाकी क्या करते हैं, वो जो सेल टैक्स उन्होंने आपसे और मेरे से काटा होता है ना, वो शो कहते करते हैं कि हमने इतना टैक्स दिया। भाई आपने जो कमाया अपनी इनकम पे वो बताइए कितना। वो तो हमें भी उन्होंने इटीसीटी करके ना तो 20,000 रुपए दिया होता है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और रजी दादा, जी एक मासूमाना सवाल है। हाँ, ये जो पाकिस्तान में बड़ी तरक्की हो गई। इतनी तरक्की हो गई है, लोग पैदल ही सिंगापुर पहुंच गए। नहीं, सिंगापुर से आगे गुजर गए। आगे गुजर गए। ठीक है ना? ये केपी के जो गुजरा है वो इतने गैर संजीदा क्यों है? नहीं नहीं, हाँ। उनका लेवल ही यही है। अच्छा। वो चवानी वाली ये पार्टी है। मैक्सिमम है। वो चवानी वाली पार्टी है ना, अच्छा। उनका लेवल ही यही। ठीक है ना? अब आप अंदाजा फरमाइए, वो कह रहे हैं सिंगापुर ने रेवेन्यू के अंदर कलेक्शन के 28% अचीव वैसे किया भी दादा एक बात है, हमने- उनको पता है कि हम कोई भी हमने बात करें यू टर्न पे ले 55% लेना है। हमने 55% अचीव कर लिया है। अच्छा, 55% आपकी रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा हुआ है। और आज की दूसरी खबर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने हाँ जी। स्टे जारी कर दिया है कि आप यूनिवर्सिटियों से मुल्हिका जमीनें नहीं बेच सकते। अच्छा, क्यों नहीं बेच सकते? इसलिए नहीं बेच सकते कि वो यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन होता है, ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट की जमीन आप कोई भी असासा आप नहीं बेच सकते। जब आपके पास इतनी अमीरत है, पैसा लेकिन है, तो यहाँ फिर पे आपने तो- बेचना क्यों है? यहाँ पे तो कादर ट्रस्ट बन गया, जमीनें आ गई, जमीनें चली गई, मतलब ट्रस्टीज इंडक्ट हो गए, ट्रस्टीज चले गए, तो ट्रस्ट जो तो को तो फिर वैसे ही वायलेट करना हुआ ना उन्होंने। तो उन्होंने, अब आप अंदाजा करिए इन दोनों खबरों के दरमियान कनेक्टिविटी ढूंढिए। वो कह रहे हैं जी हमारा 55% बढ़ गया, ठीक है, रेवेन्यू, विच इज स्टिल क्वेश्चनेबल, लेकिन चलें हम उसको फेस वैल्यू पे उनके क्लेम को ले लेते हैं। तो अगर 55% बढ़ गया है तो यार वहां पे मुजाहिरीन मुजाहरे कर रहे हैं काफी अरसे से, स्कूल के साथ महकमा सड़कों सेहत पे इतने टाइम से। के मुलाजमीन कि हमारी तनख्वाहों में वो इजाफा करो जो वफाक ने किया। इवन अभी तो मैं आज खबर देख रहा था कि केपीके के आईजी ने फेडरल गवर्नमेंट को एक खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में जो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स हैं, तीनों सूबों में पुलिस की जो सैलरी है वो ज्यादा है। केपीके में पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी बहुत कम है, कर लोगा। और जिस वजह से जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो केपीके में सर्व करने से कतराते हैं। अच्छा, मुझे बात की रजी दादा समझ नहीं आई। एक तरफ एक बड़े प्यारे चीफ मिनिस्टर साहब, बहुत मोहतरम है, केपीके के इंतहाई काबिल एहतराम हैं, अली अमीन गंडापुर। हाय हाय हाय। अच्छा, कुछ नाम तो उन्होंने, वो प्यारे कहाँ से लगते? सुनो ना, प्यारे, कुछ उन्होंने नाम मेरा भी उसके अंदर है। अच्छा, जैसे अमीन हफीज, ठीक है ना, नहीं, मैं वो ऐसे ना आपका करें, अपना अमीन साहब ऐसे अमीन ना हफीज। करें। अच्छा, अली अमीन गंडापुर कवर ना कहते करें अब अपने नाम के साथ। कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि जो काम मैं खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा हूं ऐसे काम वो पंजाब में भी। उस्मा बुहारी, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन उस्मा पंजाब बुहारी, ने जी। कि उन्होंने एक साल जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी है ना, उस पर एक किताब छाप दी है। अच्छा, बिल्कुल। वो किताब उन्होंने शायद टीसीएस करना भूल गई हैं, महकमा डाक के जरिए भेज उनको। दे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि हमने जो काम किए हैं, जो सारे काम रिकॉर्ड पे हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी मैंने लैपटॉप दे रहा हूं और उतने लैपटॉप दूंगा जितने पंजाब के तालिब इल्मों को वजीर आला पंजाब ने दिए। अच्छा, वो कहते हैं मैंने हेल्थ कार्ड दे दिया है,
اور ایسا ہیلتھ کارڈ دیا ہے ایک فکرہ ہاں جی۔ لیکن پڑھنے کے لیے پھر ان کو پنجاب بھیجوں گا پنجاب بھیجوں گا. اچھا کہتے ہیں میں نے ہیلتھ کارڈ جو ہے نا دیا ہے, ایسا ہیلتھ کارڈ دیا ہے کہ سارے کے پی کے سارے جو ہے نا معصوم بچے سے لے کے بابا جی تک سب پنجاب کو آتے ہیلتھ ہیں. کارڈ دے نہیں، دیا وہ ہے. پنجاب آتے ہیں علاج کے لیے. وہ کہتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ اگر کے پی کے بہت ترقی کر رہا ہے تو ایک چھوٹی سی بات, رضی دادا اگر آپ اجازت دیں, شمائلہ آپ اجازت دیں, تو ایک کہتے ہیں نا کہ جیسے یونیورسٹیوں میں بچے شعر و شاعری کرتے ہیں, مطلب وہ جو بریک ٹائم ہوتا ہے, تو میرے جیسا نوجوان ذرا شرارتی ہوتا ہے تو وہ ذرا شاعر کو کہتا ہے کہ یار آپ نے جو شعر سنایا ہے نا وہ کافی ردیف نہیں مل رہا. اچھا کے پی کے وزراء کی باتیں ذرا سنیں. ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنی ریونیو کلیکشن میں ترقی کر لی ہے, سنگاپور کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں, وہ 28% پہ ہیں, ہم نے 55% پہ ہیں. دوسرا وزیر جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں کہ جی معاملات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ ہمیں 25 ارب روپے کا خسارہ پورا کرنے کے لیے گھر کے برتن بیچنے پڑ گئے. امین صاحب مطلب ان کو مشورہ دیں کہ تیسری پہلے بات بھی آپس سن لیں. میں صلاح مشورہ یونیورسٹیاں کریں. تیسری بات بھی سن لیں. یونیورسٹیاں انہوں نے سنے, یونیورسٹیاں کو نام کون کون سے لیے ہیں, خان عبد الولی خان یونیورسٹی, ایگریکلچر یونیورسٹی مردان, آئے ہائے ہائے, اور اس کے بعد جو میڈیکل کمپلیکس ہے ان کا خان عبد الولی خان, اتنی بڑی یونیورسٹیاں, ان کی اراضی وہ بیچنے جا رہے ہیں. موقف کیا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ ان یونیورسٹیوں کے جو خسارے میں ہیں وہ ان کی جو زمینیں ہیں او ماں گھر مار کے گئی برتن, جیڑی دودھ نال روٹی دیندی سی. نہیں, وہ اجازتاں ختم ہو گئی ہیں, اجازتاں زیادہ. پرانے دور وچ سن. اچھا امین صاحب وہ جو پولیس آفیسر کی بات بتائی آپ نے, ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہیلتھ کارڈ کی انہوں نے بات کی. گزشتہ دنوں ہمارے ایک دوست کو دل کا مسئلہ تھا, تو ہم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چیک کروایا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کروانا چاہ رہے ہیں اس پہ کارڈ پہ یا مفت میں تو وہ اتنی دیر ہے, اگر آپ نیٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ابھی کروا لیں. ہم نے کہا جی ابھی کر دیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ سٹنٹ جو ہے نا یہ آپ کو نا, آپ اس کا بازار سے پتہ کریں. تو ہم نے وہ بازار سے جب پتہ کیا تو وہ سٹنٹ کوئی 80,000 کے قریب آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس سے بہتر سٹنٹ جو ہے اگر 20,000 میں دلوا دوں. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ, اب وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, کوالیفائڈ ہیں, میں نے کہا یہ چمتکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کے پی کے اندر ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو فراڈ ہو رہا ہے اس کے تحت یہ چیزیں وہ پرکیور کرتے ہیں, استعمال نہیں کرتے. اور 80,000 والی چیز اگر 20,000 میں لاہور میں دستیاب ہے یوز ہونے کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ وہ 80,000 والی چیز اس نے 10,000 میں بیچی ہوگی وہاں پہ. وہ کہتا جی اتنی زیادہ خوفناک انٹینڈنگ ہے وہاں پہ, اور وہ بیشتر وہاں کے مریضوں کے اندر استعمال نہیں ہوتی. وہ کہیں ڈاکٹر صاحب جو تھے نا وہ کہنے لگے تکلیف اس میں بتاؤں کیا ہے کہ اس مریض کے نام کے اوپر وہاں پہ ہیلتھ کارڈ سوائپ ہو جاتا ہے, چیز ڈرا ہو جاتی ہے, استعمال نہیں ہوتی. استعمال ہونے کے لیے وہ بیچارے کو پنڈی آنا پڑتا ہے, آپریٹ بھی وہ آگے پنڈی ہوتا ہے, وہ جو چیز وہاں پہ ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو دوبارہ آ کے اوپن مارکیٹ سے پرکیور کرنا پڑتی ہے. اچھا مطلب ہے کہ کے پی کے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے وہ اس میں سے میڈیسن اور وہ پیسے نکل گئے, لیکن اس میں علاج نہیں ہوا. یہ آپ کہہ رہے ہیں علاج نہیں ہوا. علاج کروانے کے لیے اسے اٹک اور پنڈی آنا پڑے گا, اور وہ چیز پیچھے سے چلتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہی آئے گی. وہ جو بلیک مارکیٹر ہوگا وہ لے کے آئے گا. لیکن ایک بات جو ہے نا, ایک مشورہ زور سے مجھے آیا, مجھے زور سے ایک مشورہ آیا. آخری بات, اس کے بعد آپ مائک آپ کے حوالے. دیکھیے جو بانی پی ٹی آئی ہے نا, انہوں نے پہلے بانی پی ٹی آئی جب کال دیتے تھے نا تو ان کے کال کے اندر دھڑا دھڑ لوگ آتے تھے, جوک در جوک. آج انہوں نے کال دے دی, یہ ہو گیا. پھر بانی پی ٹی آئی نے نا ایک بات کہی, اور پنجاب کے اندر سے پھر اس کے بعد کوئی نکلا نہیں ہے پی ٹی آئی کا کارکن. جی اللہ, انہوں نے بھلا کیا کہا, انہوں نے کہا میں اگر دوبارہ منتخب ہوا میں دوبارہ عثمان بزدار کو چیف منسٹر بناؤں گا. میں 100 دفعہ منتخب ہوا, میں 100 دفعہ چیف منسٹر بناؤں گا بزدار کو. اس کے بعد پنجاب کے پی ٹی آئی والے نے کہا ہاتھ جڑوا لو,
اب اچھا نہیں جو امین ٹھیک صاحب ہے؟ آپ نے جس پولیس آفیسر کا کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب سندھ اور ہر جگہ سیلری زیادہ ہے آئی جی صاحب نے جو کہا ان کو آپ نے سہیل افریدی کا کیوں نہیں بتایا کہ اس کو سب سے پہلے پکڑے جو کہہ رہے جی آپ سندھ پنجاب کی بات کرتے ہیں ہم تو سنگاپور سے بھی نکل گئے وہ پیدل ہی نکل گئے رضی دادا پنجاب پہ واپس آ جائیں وہ اس ٹرک پہ گئے ہوں گے جو نارملی وہاں سے آتے ہیں نا ہمارے پنجاب جو ہے رضی دادا پنجاب جو ہے نا ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز بڑا خوبصورت بنانے چاہ رہی ہیں سیاحت کا مرکز بننے چاہ رہی ہیں یار اتنا اچھا موضوع چل رہا تھا آگے ہم سنگاپور سے آگے گزر میں کہہ رہی ہوں بلکہ امین حفیظ اتنا خوبصورت پنجاب بننے والا ہے کہ آپ کے وہ جو گورے ہیں نا گورے بھی پنجاب آیا کریں گے دیکھیں جی اب چیف منسٹر پنجاب نے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے جہاں ان کے 1 سال کے دوران انہوں نے تقریباً more than 70 سے زائد منصوبے اناؤنس ہی نہیں کیے اور عملی طور پر بھی وہ منصوبے جو اس کا پہلے گراؤنڈ پہ انہوں نے کہا پہلے گراؤنڈ پہ لاتے ہیں پھر ہم اس کا عوام اس سے مستفید ہونا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے ویسے تو ٹورزم تو بانی صاحب نے بھی بڑا پلان کیا تھا درخت بھی لگانے کی باتیں کی تھی وہ نہ درخت لگے نہ ٹورزم فروغ ہوا تو بات یہ ہے کہ اب باقاعدہ پلان کیا گیا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ وہ 3 مراحل میں پنجاب کے جو ٹورزم کے پوائنٹس ہیں وہ ایریاز ہیں ان کو انہوں نے پنجاب کو 9 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو مرحلہ وار اپ گریڈ کیا جائے گا سفاری ٹرینیں وہاں پر چلائی جائیں گی اور ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پنجاب میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اتھارٹی ایکٹ بھی اس کا بنا دیا گیا ہے اور یہ سارے کام آن گراؤنڈ موجود ہیں ہونے جا رہے ہیں جب ٹورزم کے فروغ کے لیے رضی دادا پنجاب میں اتنی زیادہ جان ہے میں نے تو ابھی مطلب پی ٹی وی آنے سے پہلے اچھا گورے کی سٹوری تو سنا دے گورا آئے گا گورا میں کہتا ہوں جی پاکستان ایسا خوبصورت ملک ہے کہ یہاں 1 سال میں آپ کو تمام موسم ملتے ہیں سردی گرمی خزاں بہار پہاڑ اچھا اس کو ہم آپ کے منہ سے گورا سننا چاہتے تھے بس آپ نے سنایا نالے آبشاریں فوارے اگر پوری دنیا یہاں آنا چاہیے بدو جو ہیں وہ اپنی ریت بیچ سکتے ہیں ان کے پاس تو موسم ہی ایک ہے نا گرمی اور شدید گرمی چاروں موسم ٹھیک ہے نا میرا مطلب ہے اگر عرب کے بدو اپنی ریت بیچ سکتے ہیں یار ہمارے پاس تو پنجاب ہے ہمارے پاس تو کے پی کے ہے گلگت بلتستان ہے ہمارا کھلا بلوچستان ہے کیا بات ٹھیک ہے نا ہمارے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کیا محاورہ جڑا ہے ہمارے ہاں تو وادی مہران ہے وادی مہران میرا مطلب ہے جس کے اندر کینچر جھیل بھی ہے اور کینچر جھیل کے اندر جو مچھلی پائی جاتی ہے اس کا ٹیسٹ خاکسار نے کھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے مرتضی وہاب صاحب نے خاکسار کو انوائٹ کیا تھا اچھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 70 کے قریب منصوبے جو ہیں نا یہ کوئی آؤٹ آف بلو نہیں ہے اب دیکھیے ہم پی ٹی وی میں آتے ہیں نا اس کی بھی روزانہ صفائی ہوتی ہے مینٹیننس ہوتی ہے اس مینٹیننس کے اوپر کاسٹ آتی ہے کوئی آ کے چیک بھی کرتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ واش روم ٹھیک نہیں کیا یہ یہاں پہ پانی کیوں گرا ہے بھئی یہ کوئی پوچھتا ہے نا ٹھیک ہے وہ جو 3 سال 7 ماہ 21 دن کوئی والی وارث نہیں تھا نا تو وہ جو پروجیکٹ اس دوران چلنے چاہیے تھے جو چل رہے تھے انہیں جاری رہنا چاہیے تھا وہ جو جاری تھے وہ واپس ہونا شروع ہوئے اب مریم نواز شریف صاحبہ خوش قسمت ہے اس حوالے سے کہ ان کو ایک بیرن لینڈ ملی انہوں نے نہ صرف کہ وہ جو چلتے ہوئے پروجیکٹ تھے ان کو دوبارہ پٹری پہ چڑھایا بلکہ جو اس دوران نئے انیشیٹو لانچ ہونے تھے وہ بھی کیے اب میں نے عرض کیا کہ 1 سال کے اندر انہوں نے 1000 ارب روپے سے زیادہ کا خرچہ کیا ہے لیکن ان کا بدترین سے بدترین مخالف بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ انہوں نے منصوبہ اس لیے شروع کیا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے
अपने साहबजादे जुनैद को कोई फेवर देना था। करप्शन या की करप्शन कोई बात का नहीं या करता। उनकी ऐसी बात कुछ नहीं है। और तरह करप्शन के करनी और थी। 100 तरह के रसीदाना उनके- प्रोपेगेंडे होते हैं। लेकिन उनके खिलाफ करप्शन का प्रोपेगेंडा आज की तारीख तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। आज से आज हम तो हमारे बात शुरू प्रोग्राम की कर बात देते कर मत दीजिएगा, अगर आपने किया ना तो याद रखिएगा हम भी यहाँ तैयार बैठे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।